ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ मे भी थ्योरैटिकल पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ ना कुछ रह गया होगा। यानी कुछ ऐसा पोर्शन ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ बेसिस ਤੇ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ MCQ ਦੇ बेसिस ਤੇ ही ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ PPSC ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਨੈਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੈਬ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ ਸੇਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਸੇਤੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਨ ਸੇਤੂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਔਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਐਕਸ ਸੇਤੂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਆਫ ਸਾਈਟ। ਔਨ ਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਆਫ ਸਾਈਟ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਔਨ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨ ਸੇਤੂ, ਯਾਨੀ ਔਨ ਸਾਈਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਐਕਸ ਸੇਤੂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਫ ਸਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨ ਸਿਤੂ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੇਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆਈਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸ ਸਿਤੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ ਸਿਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ ਸਿਤੂ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਟ ਅ ਸਾਈਟ ਫॉर ਇਨ ਸਿਤੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੇਟ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੇਟ ਆ। ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਸੀਟੂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ B ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਟੀਲੋਪਸ, ਓਰਿਕਸ ਐਂਡ ਚੀਰੂ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਰਿਕਸ ਤੇ ਚੀਰੂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਡੈਸੀਡੂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਲੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਲੋਪ ਉਹੀ, ਓਰਿਕਸ ਤੇ ਚੀਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਪਾਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਚਲੋ। ਸੋ ਐਂਟੀਲੋਪਸ, ਓਰਿਕਸ ਐਂਡ ਚੀਰੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਰਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਅਡਾਪਟਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਹੌਟ ਐਂਡ ਐਰਿਡ ਏਰੀਆ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਚੀਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਅਡਾਪਟਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਸਟੈਪੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ
कोल्ड हाई माउंटेन्स, यानी यह ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लेने। कहता ओरिक्स जिहड़ा इज पोच्ड फॉर इज एंटलर्स, यानी वह शिकार है जिहड़ा इहदे वास्ते हुंदा, वेयर एज चीरू इज पोच्ड फॉर जिहड़ा हैगा इट्स मस्क, जिहड़ा कि गलत है। ओरिक्स एग्जिस्ट करता कहता सिर्फ वैसटर्न इंडिया दे विच ओनली आ गया, वेयर एज चीरू आ जिहड़ा कहता नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे विच करदा, यानी ओनली आ गया, गलत हो गया, सिर्फ इत्थे नहीं हैगा। नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी आर गिवन, कोई भी नहीं, यानी तिन्ने ऑप्शन ये कट्टियां गई। आंसर इहदा बन गया दूसरा। मैं इत्थे पिक्चर लगाई नहीं, जो आप थ्रैटिकल पोर्शन पढ़ रहे सी, तुसीं वो फोटो याद करो जिहड़ी मैं लगाई हुई सी। ओरिक्स ते चीरू तुहानूं दिखाया भी सीगा, इधर ओरिक्स सीगा, इधर चीरू सीगा, दस्सिया सी दोनों दे देखण दे विच बहुता ज़्यादा अंतर नहीं हैगा, पर एक जिहड़ा सैमी एरिड रीजन दे विच पाया जांदा, एक कोल्ड रीजन दे विच हो गया, राइट। चलो जिहड़ा एक हॉट एंड कोल्ड हो गया, राइट। चलो सो यानी कि एक गर्मी दे विच, एक ठंड दे विच है, सिंपल। चलो अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेट है, कहंदा विच वन हैज़ द मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स की होंगे जिहड़े सोहणे सोहणे फुੱਲ जे होंगे, तुसीं जेकर देखे ही होंगे सारे ने, जिहड़ी माला नहीं पाई जाती विआह ते एक दूसरे दे बार वाला माला जी पाउंदे होंदे, मोटे मोटे फुੱਲ जे होंदे, सोहणे सोहणे फुੱਲ होंदे, बाकी कोई जरूरी नहीं उस दे विच काम आउंदे, बहुत थावां ते आउंदे, तां दैट इज़ कॉल्ड ऑर्चिड्स, राइट। सो बेसिकली कहंदा उन्हां वास्ते मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट कंडीशंस फॉर कल्टीवेशन ऑफ द लार्ज ऑर्चिड्स, उन्हां दी अलग अलग वैरायटी विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन डिवेलप एन एक्सपोर्ट ओरीएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड। यानी सिंपल है कि वो जो ऑर्चिड्स है उन्होंने मोस्ट जो उन्होंने सूटेबल कंडीशन है, जो उन्होंने जिथे वो यानी प्रोडक्शन होंगी है, वो कि स्टेट है, इन्ना सिंपल क्वेश्चन है। हुण इहो जी क्वेश्चन थ्रैटिकल पोर्शन के रह जाते हैं, जिवें कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है। सो अरुणाचल प्रदेश है, राइट है। तो इन्हां वास्ते बेसिकली चाहिए कि ट्रॉपिक फॉरेस्ट, ठीक है, जिथे मीडियम जी रेनफॉल होंदी होवे, मीडियम रेनफॉल, राइट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर बनता है। नैक्सट आ गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ध्यान दे नाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लैक नैक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वैरल, स्नो लैपर्ड, कहता जी विच ऑफ द अबव आर नैचुरली फाउंड इन इंडिया। नैचुरली फाउंड इन इंडिया का मतलब की है कि वो इंडिया दे ही है, इंडिजीनियस जिमें आप गल करते हैं, राइट है। सो ब्लैक नैक्ड क्रेन हुण जम्मू कश्मीर दे विच मिलदी है, खास करके ये लद्दाख दे विच जेकर तुहानूं देखण नूं मिलूगी, जम्मू कश्मीर लद्दाख दे विच मिलूगी। हुण तां यूटियां हो गईयां, तां लद्दाख यूटी दे विच है, राइट है। लद्दाख दी ईवन कि यह स्टेट बर्ड है लद्दाख का, एंड लद्दाख का ही स्टेट जिहड़ा एनीमल है वो किहड़ा गा, स्नो लैपर्ड, यानी ये तो इंडिजीनियस हो गए। पहला तो चौथा ऑप्शन तो सही है, यानी अपन पूछा कि है नैचुरली फाउंड इन इंडिया, यानी पहला चौथा जिथे हैगा, पहला चौथा इत्थे भी हैगा, इत्थे है नहीं, इसका मतलब आ गलत हो गया। पहला चौथा इत्थे हैगा, इत्थे है नहीं, दो ऑप्शन तो कट्टे गए, पहला चौथा तो अपन पता लग गया स्टेट एनीमल तो स्टेट बर्ड है। फ्लाइंग स्क्वैरल भी जिहड़ा बेसिकली ये अपने इंडिजीनियस है, यानी आ भी सही है, यानी 1 3 ते 4 का आंसर आऊगा। चीता बहुत टाइम तो एक्सटेंट हो चुका, यानी खत्म हो चुका इंडिया के विचों। हुण जिहड़े चीते आपां देखण नूं मिलदे वो बाहरों लिआंदे जांदे हैं, यानी बाहरों उन्होंने इंडिया के विच लिआंदा जा रहा है। वैसे वो एक्सटेंट हो चुके, मैं साल भुल गया कि किहड़े साल तो एक्सटेंट हो गए सी, मे बी 1953 या 51 या 55 शायद मे बी इत्थे जे सीगे, ठीक है। उदों बाद हुण चीता अपने प्लान किए जा रहे भी, होर बहुत सारे लिआंदे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये आ बेसिकली स्नो लैपर्ड इंडिया नैचुरली जिहड़ा इंडिया दे विच मिलदा आपां नूं, ब्लैक नैक्ड क्रेन हो गया। ये एक बार यूट्यूब ते जां गूगल करके देख लो, इसकी फोटो देख लो, ठीक है। बत्तख टाइप जी होंदी है, राइट है। सो एक तुहाडा हो गया फ्लाइंग स्क्वैरल, ठीक है। सो ये देख लो। सो 1 3 4 यानी कि आंसर आ गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया होया क्वेश्चन है। सो जिहड़े क्वेश्चन घट्टो घट्ट आए हुए वो तो आप करके जाइए ना, एज इट इज़ रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जेकर आप देखिए, कहता ए सैंडी एंड सैलाइन एरिया इन द नैचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनीमल स्पीसीज। की कहता सैंडी एंड सैलाइन एरिया नैचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनीमल स्पीसीज, ओके आ। कहता द एनीमल हैज़ नो प्रीडेटर, यानी वो शिकार करने वाला कोई नहीं इन दैट एरिया, उस एरिए दे विच, बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रैटनड, बट वो एग्जिस्टेंस थ्रैटनड है, यानी खतरे दे विच है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो दसो इन्हां दे विचों किहड़ा एनीमल है। हुण इहो जिहा क्वेश्चन जिहड़ा आ जे, ये किहदे नाल रिलेट करदा गा, न्यूज़पेपर दे नाल। जिहड़े न्यूज़पेपर दे नाल
जुड़े रहंदे आ, करंट अफेयर्स दे नाल जुड़े रहंदे आ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਔਖਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਂਡੀ ਸਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਬਿਟੇਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो दसो कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनीमल, वो किहड़ा एनीमल हो सकता। पहली गल तो सैंडी ते सैलाइन, ये तुहानूं एरिया का अंदाजा होना चाहिए, राइट, भी कित्थे जे है, राइट। जे तुसीं हुण इंडियन वाइल्ड बफैलो की जेकर गल करोगे तो तुहानूं यह ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਸੈਂਡੀ ਸਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਬਫੈਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲਡ ਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕੋਸਟਲ ਇਲਾਕੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਈਲਡ ਐਸ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਈਲਡ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है, ਜਾਂ इंडियन गैजल हो गया। हुण इन्हां नूं जदों गूगल करके देखोगे तो तुहानूं फिर पता जिवें हुण गैजल ये की है भला, बारासिंगा, राइट। जिवें तुसीं इहदा देखो, जिवें हुण इंडियन वाइल्ड बफैलो की गल करा या इंडियन वाइल्ड एस की गल करा। सो हुण इन्हां दी पहिलां तां तुहानूं फोटोआं पता होनी चाहिए। जेकर तुसीं गूगल करके इन्हां दी पिक्चरां देखोगे फिर ही तुहानूं एक आइडिया हो जाऊगा। पर यह पिछले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, नवे आ तो सर्च घट करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो एक अप्रोच जा आ जाऊगा भी हाँ किहड़े आंसर लग सकते हैं, राइट। जिवें आपां इहदे बारे पढ़ रखे, पर हुण इंडियन गैजल तुहाडे दिमाग दे विच नहीं आ रहा। हुण जे मैं नाम बोलूँगा तो तुहाडे दिमाग दे विच आ जाऊगा चिंकारा। ये चिंकारा मैं कदों पढ़ाया, जो आपां थार डेजर्ट की गल कीती है कि थार डेजर्ट दे विच हुण तुहानूं वैसे नहीं पता लग रहा। हुण जे मैं बहुत सिंपल भाषा दे विच बोलदा तां बारासिंगा, हुण पता लग गया अच्छा बारासिंगा, ओ अच्छा ठीक है। सो चिंकारा एक वैरायटी नाम थार डेजर्ट के पाया जाता है। सो ऑब्वियस गल है सैंडी सलाइन तो दूर हो गया, राइट है। सो इंडियन गैजल हो गया, चिंकारा, बारासिंगा, थार डेजर्ट के एवं ही तुहानूं याद करना पऊगा। इंडियन वाइल्ड बोर हो गया, ये पाया जाता है कि तराई रीजन के, तराई रीजन किहड़ा गा, हिमालयन का जिहड़ा लोअर पार्ट है, हिमालयन का जिहड़ा लोअर पार्ट है उन्होंने तराई रीजन कहते हैं। सो उत्थे आपां नूं इंडियन वाइल्ड बोर यह मिलता है, राइट है। सो इस तो बाद एस की आप गल कर ही ली, इंडियन वाइल्ड बफैलो तुहानूं बहुत तरह नाल मिलता, ठीक है। सो ये चीज़ां तुसीं जरूर याद करके जानियां गईयां, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है। समझ में बात आई या नहीं? इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करिए। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बैट, बी एंड बर्ड। कहता इन्हां दे विचों किहड़ा पॉलीनेटिंग एजेंट का काम करता। हुण पॉलीनेटिंग एजेंट की हुंदा, जिवें तुहानूं पता कि एक पत्ती आ, पत्ती ते जिहड़ा फुੱਲ, जिवें आपां जवाक पैदा करते हैं, बहुत सिंपल है यार, ठीक है, उवें ही पत्ते फुੱਲ पैदा करते हैं। तो उन्हां दी हुण रीप्रोडक्शन ऑब्वियस गल है, जिहड़ा ह्यूमन दे विच वो प्रोसैस हो रहा है, जिहड़ा प्लांट्स दे विच वो प्रोसैस हो रहा। तो पत्ती ते जिहड़ा फुੱਲ आउंदा हैगा, सो ऑब्वियस गल है जिहड़ी प्रोडक्शन हुंदी है तो कोई ना कोई आके ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪੋਲੀਨੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੈਟ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਨੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀੜਾ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਗਾ ਉੱਥੇ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਖਾਊਗੀ ਤਾਂ ऑब्वियस गल है ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਰੋਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 에ਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਬਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਵੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਨੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ठीक है। असल दे विच एनवायरनमेंट है जिहड़ी वो औखी इस करके ही लगती है क्योंकि ये क्वेश्चन है जिहड़े थोड़े जे कंसैप्ट बेस ते ज़्यादा आउंदे ते जां न्यूज़पेपर बेस ते ज़्यादा आउंदे, जां फिर जिन्ना तुसीं पढ़ लोगे उन्ना। चलो रैड डाटा बुक देखो, बहुत सोहना रैड डाटा बुक आपां पढ़िया गा। रैड डाटा बुक कहंदा पबलिश की जाती है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर एंड नैचुरल रिसोर्सिस कंटेन लिस्ट्स ऑफ। सो रैड डाटा बुक का इक्को ही एक तरीका ਜਿਹੜਾ मतलब ये रैड डाटा बुक जी बनाई जाती है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की गल की जाती है, खतरे की घंटी जिन्हों पर मंडरा रही है वो रैड डाटा बुक के पा दिते जाते हैं। कहता एंडेमिक प्लांट एंड एनीमल स्पीसीज़ प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स।
सो ये भी क्वेश्चन आप किया हो जेकर तुम थ्रैटिकल पोर्शन पढ़ रखा है राइट। उत्थे कराया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक होर अलग मैथड है राइट है, यानी वो रेड डाटा बुक दे विच नहीं। थ्रैटनड प्लांट एंड एनीमल स्पीसीज तो बिल्कुल राइट हैगा ही हैगा, क्योंकि जोड़े प्लांट एंड एनीमल थ्रैटनड आ वो रेड डाटा बुक दे विच तुहानूं मिलणगे। प्रोटैक्टेड साइट्स फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर एंड नैचुरल रिसोर्सिज इन वेरीअस कंट्रीज, सो ये भी हो जाना गलत, यानी ओनली 2 आंसर इहदा बनता है। आई समझ में बात। इस तो बाद आ गया नैक्सट, द हिमालयन रेंज कहना वैरी रिच है कास्ट दे विच इन स्पीसीज वैरायटी, यानी बहुत तरह की इत्थे वैरायटी आपां नूं देखण नूं मिलदी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना, मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर किहड़ा। हुण इत्थे बहुत आंसर है जिहड़े तुहाडे एक तो ज़्यादा हो सकते, यानी एक तो ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट दसना आप देखो ध्यान दे नाल। कहंदा हिमालयन रेंज इज़ वैरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। जदों आप डाइवर्सिटी बारे पढ़ियागा तो मैं तुहानूं दस्सिया कि सब तो ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है इकोटोन दे विच। इकोटोन का मतलब की हुंदा मार्शलैंड, मार्शलैंड का मतलब की हुंदा, या इकोटोन का मतलब की हुंदा जिथे टैरिस्ट यानी वो इकोसिस्टम जिहड़ा टैरिस्ट्रियल इकोसिस्टम ते एक्वेटिक इकोसिस्टम के विचकार लै। क्योंकि सीधी जी गल है ज़्यादा जानवर ज़्यादा अपना भी जेकर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की गल करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पहला इंडस रिवर कोले आई, यानी जिथे पानी भी एग्जिस्ट करता जिथे लैंड भी एग्जिस्ट करती है। ज़्यादा जानवर आप भी जानवर ही आप भी उत्थे ही रहना जिथे आपको पानी भी बहुत सौखा मिल जाए, लैंड ते भी आप रह रहे हैं, यानी लैंड भी आपको बहुत सौखी मिल जाए। तो ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलू तुहानूं इकोटोन दे विच, दैट इज़ कॉल्ड ऑलसो मार्शलैंड, उत्थे आपको ज़्यादा स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी मिलती है। सो उही है कि हिमालयन रेंज कहता वैरी रिच इन स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। तो दसो इन्हां दे विचों मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बनता। पहला कहता इट इज़ हैज़ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जूरीएंट वैजीटेबल ग्रोथ, यानी ठीक है कि हाई रेनफॉल है तो उत्थे आपको वैजीटेटिव ग्रोथ मिलती है, लग्जूरीएंट बहुत ज़्यादा राइट। सो उन्होंने सपोर्ट करता बेसिकली हो सकता है ये आंसर होवे, ठीक है। कहता इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोनस, जी मैं गल हुण करके हटिया कि उन्होंने ये सुमेल है, बहुत सारे बायोजियोग्राफिकल जोनस मिलते हैं, इस करके जो बहुत सारे बायोजियोग्राफिकल जोनस है सो इस करके उत्थे आपको जी स्पीसीज डाइवर्सिटी आ वो ज़्यादा मिलती है, यानी कि ये भी राइट हो गया, ठीक है। कहता एग्जॉटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस, यानी जो इन्वेसिव यानी जो गर्म ख्याली कह गर्म खून, यानी जेडे बेसिकली किसी को होर रहन नहीं देंगे राइट। कहता वो ज़्यादातर इत्थे तुहानूं नहीं देखने को मिलते, हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, ठीक है। इट हैज़ लैस ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी इत्थे कहता ह्यूमन इंटरफेरेंस घट है, इस करके स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। यानी तुसीं आम तौर पर आ 2 ऑप्शन तो सीधा ही कट सकते हो जेकर थोड़ा बहुत भी तुसीं अप्रोच रखते हो वधिया। हुण पहले 2 ऑप्शन रह गए, भी तुहानूं लगदा कि पहले 2 ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है ये मैं भी कह सकदा गा, पर ध्यान दे नाल हाई रेनफॉल पूरे हिमालयन रेंज दे विच तुसीं नहीं देखोगे, ठीक है। दूसरी गल यह है कि जेकर मैं दोनों ऑप्शनों की ट्रांसलेशन या दोनों ऑप्शन समझने की कोशिश करा कि कहता इत्थे हाई रेनफॉल ज़्यादा इस करके लग्जूरीएंट वैजीटेटिव ग्रोथ नूं जिहड़ा हैगा सपोर्ट करते, इस करके जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है जी। दूसरा की कहना इत्थे क्योंकि बहुत सारे जियोग्राफिकल जोनस का डिफरेंट जियोग्राफिकल जोनस का, यानी एक जियोग्राफिकल जोन हो गया, दूसरा जियोग्राफिकल जोन हो गया, तीसरा हो गया, तो बहुत सारे जियोग्राफिकल का सुमेल है, इस करके इत्थे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। यानी बहुत सिंपल जी गल है, जेकर मैं कहा कि इत्थे बहुत लोग रहिंदे आ, बहुत तरह के लोग रहिंदे आ, उहदा कारण की आप कह सकते भी क्योंकि दिल्ली कैपीटल है, इस करके बहुत सारिया नौकरियां इत्थे मिलदियां, इस करके अलग अलग स्टेट्स तो इत्थे आउंदे आ, बहुत सारे स्टेट्स का कॉन्फ्लुएंस हुंदा गा, इस करके इत्थे ट्रैफिक ज़्यादा, इस करके इत्थे डाइवर्सिटी ज़्यादा, इस करके इत्थे बंदे ज़्यादा, तो ये ज़्यादा अप्रोच एप्रोप्रिएट लग रहा है ना। सो यानी ये आंसर है जो बी ही आऊगा राइट। सो इस तरीके नाल जेकर अप्रोच रखोगे तो तुहाडे आंसर मैक्सीमम होने की संभावना कि राइट हो जाए। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, कहता इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूवड, कहता जेकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमूव हो जाए, कहता इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली, ये दोबारा रीजनरेट जल्दी नहीं होना। किहदे नाल कंपेयर करिए जेकर एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट। हुण ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट भी आप पढ़ रखे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पढ़ रखे। डेसीडुअस मैं जदों भी डेसीडुअस पढ़ाया तो एक चीज़ याद करना मैं पक्का कही है कि जदों भी डेसीडुअस पढ़ना तो पत्ते झड़न की गल कर लो कि पत्ते झड़ते हैं तो पत्ते आउंदे आ एक टाइम ते, राइट हो गया। सो बेसिकली गल की है कि जेकर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की गल करिए तो रेन तो आपको ये पता लगता कि हाँ रेन यानी उत्थे
बहुत ज़्यादा बारिश होंगी है। हुण बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उत्थे जिहड़ी मिट्टी आ वो इनफर्टाइल होगी, यानी उत्थे इरोजन ज़्यादा होगा। इरोजन ज़्यादा होगा तो जिहड़ी उपरली तय है मिट्टी की जिथे ज़्यादा बेसिकली न्यूट्रीएंट्स की गल करते हैं तो वो इरोजन हो जूगी, यानी वो लैंड आ जिहड़ी वो इनफर्टाइल हो जूगी। इस करके जदों आपां उहनूं गल करिए कि उहनूं डिस्ट्रॉय करदा तो उहनूं दोबारा रीजनरेट होने दे विच टाइम लगूगा एज कंपेयर टू डेसीडुअस, क्योंकि वो तो पत्ते झाड़ दिंदा ते ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕੁਇਕਲੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਡੈਸੀਡੁਅਸ ਫੋਰੈਸਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦ ਸੋਇਲ ਆਫ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ ਸਮਝ में बात। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਦ ਬਾਰਕ ਆਫ ਟਰੀ, ਵੈਨ ਦ ਬਾਰਕ ਆਫ ਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਸਰਕੂਲਰ ਫੈਸ਼ਨ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਨੀਅਰ ਇਟਸ ਬੇਸ ਇਟ ਜਨਰਲੀ ਡਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਈਜ਼। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, हो सकता है कंसैप्ट बेस ते हुण ते आपां इन्हां नूं कर लईए ते हो सकता है एज इट इज़ रिपीट हो जाण। सो डीमोटिवेट होने वाली कोई गल नहीं, क्वेश्चन आपां कर ही इस करके रहे। कहंदा वैन द बारक ऑफ ए ट्री, जदों आपां ट्री दी जिहड़ी बारक आ, खाल आ, छाल आ, जिहूं की जो भी कहंदे आ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਸਰਕੂਲਰ ਫੈਸ਼ਨ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਨੀਅਰ ਇਟਸ ਬੇਸ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਰਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦੀਏ, ਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰਲੀ ਡਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਸੋਇਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਏਰੀਅਲ ਪਾਰਟਸ, यानी जो मिट्टी तो पानी जाना वो फिर जानों हट जाता, यानी कि कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट, जाता नहीं। रूट्स आर स्टार्वड ऑफ एनर्जी, जड़ियाँ रूट्स आ कहता वो एनर्जी नहीं उन्होंने बेसिकली मिलती, स्टार्वड ऑफ एनर्जी घट जाती। ट्री इज़ इनफैक्टेड बाय सॉयल माइक्रोब, जोड़े सॉयल माइक्रोब उन्होंने तो इन्फैक्शन हो जाती, इन्फैक्टेड हो जाता तो मर जाता। रूट्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सब तो पहला तो ऑप्शन में आही कट्टू, डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन तो जादू ही नहीं, ऑबवियस गल है ना। सो ये यानी कि पहला ऑप्शन तो कट्टिया गया। हुण जिहड़ी गल आ तुसीं जेकर जाइलम फोलम थोड़ा जिहा पढ़िया होवे, फ्लोइम बारे पढ़िया होवे, ये बायो दे विच आम तौर पर पढ़ाया जाता है, हो सकता क्योंकि थोड़े सिलेबस च मैंशन नहीं है इस सकता, हो सकता तुसीं उन्ना डिटेल दे विच जाइलम या फ्लोइम नूं ना पढ़िया होवे। जाइलम हुंदा गा पानी वास्ते एंड जिहड़ा फ्लोइम हुंदा गा इह जिहड़ी फूड चेन वास्ते हुंदा, यानी भोजन आ जिहड़ा वो एक तो दूसरी ट्रांस, जिवें आपां कहना भी भोजन वास्ते हुंदा, फूड कैरिंग हुंदा, ठीक है। फूड कैरिंग का मतलब भोजन आ जिहड़ा वो जमा आई जांदा गा, ठीक है। जिवें आपां गल करिए कि जेकर मान लो इहनूं फल लग गए तो हुण जिहड़ी रूट्स नूं एनर्जी मिलनी है तो वो इत्थों मिलनी है, राइट। तो फूड जो भी बनता है बेसिकली फ्लोइम जिहड़ा हैगा वो फूड कैरिंग का काम करदा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करदा है, राइट। हुण जदों बारक आ जिहड़ी वो बेस तो आपां रिमूव करती, की क्या बारक ऑफ ट्री उन्होंने रिमूव करता तो बेसिकली जो फ्लोइम यानी भोजन है जो फूड कैरिंग है वो फिर रूट्स तक पहुँचता नहीं, जो रूट्स तक पहुँचूगा नहीं तो वह एनर्जी तो परे हो जाएंगे, यानी उन्होंने एनर्जी नहीं मिलनी। सो यदा आंसर है जो रूट्स आर स्टार्वड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। सो ये चीज़ मेरे हिसाब के नाल तुसीं समझ रहे होंगे, एनर्जी तो वांझियां रह जाएंगे। नैक्सट कहता जी कंसिडर द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्कैनिक इरप्शन। मैनूं लगता है क्वेश्चन आपां कीता होया वोल्कैनिक एक्शन वाला। देखो ध्यान दे नाल कहंदा इन्हां दे विचों कार्बन डाइऑक्साइड आ जिहड़ी वो ऐड होंदी है टू द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। आपां सारे साइकिल पढ़ रखे आ, कार्बन साइकिल भी, वाटर साइकिल भी, फॉस्फोरस साइकिल भी, सल्फर साइकिल भी, ठीक है। सो ये सारे आपां पढ़ रखे, नाइट्रोजन साइकिल हो गया। सो उन्हां दे विच पुछया कि कहंदा इन्हां दे विचों दस्सो जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंदी है टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ, तो इन्हां दे विचों किहड़ा प्रोसैस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पहला ऑप्शन सीधा ही जिहड़ा हैगा कट्टिया जाऊगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड नूं यूज़ करदा हाँ अपना भोजन बनाने वास्ते, राइट। सो बेसिकली ये हो गया गलत। रेस्पिरेशन ऑबवियस गल है, रेस्पिरेशन वास्ते वो जिहड़ा इनहेल करते हैं जिहड़ा अपना कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑबवियस गल है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा वो यानी कि कार्बन साइकिल दे विच मिलदा, ऑबवियस गल है। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो डीकंपोजिशन यानी मर जाता पौधा वगैरह,
ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੀ ਆंसर ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ है। आई समझ में बात, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਹੁੰਦੀ ਆ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सबसटेंसिस आर यूज्ड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ओजोन डिप्लीटिंग ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ, ओजोन ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ओजोन ਹੋਲ ਹੈ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग आर यूज्ड, अच्छा आर यूज्ड पूछा तो कितने यूज होंगी है, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म्स, बिल्कुल नहीं। इन द हुण तुसीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर देखोगे फ्रिजेस दे विच, है ना, जिथे जो फ्रिज जिवें अपने रेफ्रिजरेटर हो गए, इत्थे ज़्यादा तुसीं देखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होंदी है। इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक होम्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलैस टायर्स, इन क्लीनिंग सर्टेन इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल कैन च। सो यानी चौथा ऑप्शन इहदा राइट बन गया, ओनली चौथा इहदा आंसर आ जाऊगा। यानी कहने का मतलब की है कि जिहड़े आपां परफ्यूम हो गए, स्प्रे हो गया, जिथे प्रैशर करके उन्होंने यानी जिहड़ा लिक्विड है जां जो भी उन्होंने कह लो, है ना, लिक्विड फॉर्म दे विच भी हो सकता है, ऑब्वियस गल है, तो उन्होंने प्रैशर नाल उहदे विच रखिया जाता है। रेफ्रिजरेटर दे विच भी आपां फ्रिज आ जिहड़ी अपनी उहदे विच भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिहड़ी प्रैशर दे विच यानी कि कंप्रैस करके रखी जाती है, राइट। सो उही आ कि प्रैशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैंस, तो वो स्प्रे के नाल ही रिलेटेड है, ठीक है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्थे यूज की जाती है ज़्यादातर, ठीक है। चौथा आंसर बन गया। बस रब करे कि इन्हां दे विचों क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो अपने पेपर दे विच आ जाए, बल्ले बल्ले। पर फिर मैं वही कहना कि रिपीट का मतलब ये नहीं कि एज इट इज़ रिपीट होगा, घुमा के हो जाऊगा रिपीट, पर थोड़ा जिहा अप्रोच वधिया रखनी है, थ्रैटिकल पोर्शन पढ़ना गा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच अबव एमिशन और एमिशंस फ्रॉम कोल कंबस्टन एट थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट है, कोल बर्न होंदा, कोल कंबस्टन होंदा, तो उत्थों किहड़ी गैस निकलदी, सब तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की आपां बहुत बारी गल करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, NO2 SO2 तुसीं पढ़ते होंगे खास करके, राइट है। तो किवें आपां पढ़दे कि भाई ये एसिड रेन वास्ते बड़े ही घातक, एसिड रेन के वास्ते रिस्पॉन्सिबल है, राइट। पढ़ते हो कि नहीं जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है। सो ऑब्वियस गल है कोल कंबस्टन होंदा, तो तिन्ने ही आंसर का बनता है, सौखा क्वेश्चन। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because it absorbs। की कहना अमाउंट जी कार्बन डाइऑक्साइड की है, हाँ, इनक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जी हवा के कहना राइज हो रहा है, इज स्लोली रेजिंग द टैंपरेचर ऑफ द एटमोसफेयर, टैंपरेचर राइज हो रहा है बिकॉज कहता ये अबजॉर्व करता है। ऑब्वियस गल है, जिमें आप वीनस की आप गल करते हैं कि वीनस जोड़ा वो सब तो हॉटेस्ट जोड़ा है यानी प्लैनेट है, राइट। आप गलबात करते हैं ना वीनस की, क्योंकि उत्थे 95% बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हुण इहदा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल हैगी आ, ऑब्वियस गल है, काहदे वास्ते, टैंपरेचर यानी कि राइजिंग वा, टैंपरेचर वधदा यानी कि टैंपरेचर हाई हुंदा गा, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, इहदा मतलब इहदा ठीक है। पर क्यों रिस्पॉन्सिबल है, कहना बिकॉज इट अबजॉर्ब्स द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट, वाटर वेपर को अबजॉर्ब करती जो एयर के विच, इस करके, ठीक है। द अल्ट्रा वायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ओके है, जो अल्ट्रा वायलेट यानी UV रेज उन्होंने ये अबजॉर्ब कर दिया। ऑल द सोलर रेडिएशन, सारिया सोलर रेडिएशन उन्होंने अबजॉर्ब कर दिया। द इन्फ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन यानी इन्फ्रारेड जी रेज है उन्होंने ये अबजॉर्ब कर लेंदी। हुण क्वेश्चन बहुत सौखा है, छोटिया क्लासा के पढ़ते होने, पर ज़्यादातर बच्चे गलत कर जाएंगे, कई ला जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट पाल, हाँ जी UV रेज में अबजॉर्व कर दी है, इस करके गर्मी बहुत होंगी है। कई कह देंगे भी हाँ जी सारिया रेडिएशन अबजॉर्व कर दी है, इस करके होंदा गा। कई कह देंगे तो वाटर वेपर, हाँ जी वाटर वेपर हो गया, ठीक है। सो ज़्यादातर B ऑप्शन लाने वाले बहुत होंगे, पर इसका आंसर एक्चुअल D है। कहना की चाहता गा, जी अपनी गर्मी है बेसिकली, चाहे वीनस की चाहे धरती की आप गल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने दिनों दिन वधदी जाती है, ऑब्वियस गल है टैंपरेचर रेजिंग वास्ते रिस्पॉन्सिबल हैगी आ। पर जिवें इन्फ्रारेड सूरज तो किरणा यानी धरती तक जिहड़ियां आउंदियां गईयां, सूरज तो किरणा इन्फ्रारेड रेज आउंदियां जिहड़ी आप गल करते हैं, पर जदों ये वापस जांदियां इन्हां नूं कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाण नहीं दिंदी, वापस जांदे अबजॉर्व करदी है। इस करके
ਹੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੀਨਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬਸ ਦ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲ ਇਨ ਦ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਰੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਾਜ਼ ਫॉर ਕੰਸਰਨ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਰੀਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਵੇਂ ਪਰਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਰੀਜਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਤਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਲ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਤੇ ਐ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਹੋਲ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਰੀਜਨ ਤੇ ਹੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਨੀ ਮੋਟੀ, ਯਾਨੀ ਹੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, परत पतली होती है, राइट। सो द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज बीन कॉज ऑफ कंसर्न, ऑब्वियस है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल, ये फॉर्मेशन हो ही क्यों है, देख रहे हैं सारा कुछ है, ठीक है। फॉर्मेशन ये बेसिकली हो ही की प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस and inflow of chlorofluorocarbon, ठीक है। presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons, absence of polar front and stratospheric clouds and inflow of methane and chlorofluorocarbons, increased temperature at polar रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सो ऑब्वियस गल है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੈਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੈਰਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੈਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਮੀਸੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਲਰ ਫਰੰਟ and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbon। सो ऑब्वियस गल है, पहला तो ऑप्शन तुसी सीधा ही कट सकते हो, इंक्रीज टेंपरेचर एंड पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, एबसेंस ऑफ पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट तो प्रेजेंट है ही है, प्रेजेंस ऑफ क्योंकि पोलर फ्रंट की भी आप गलबात कर रखी, जियोग्राफी के थोड़ा रिलेट करो। जो आप पोलर रीजन की गल करते, पोलर रीजन के कितने जिते हायर मासिव विंड्स आ जड़ियाँ आके भिड़दियाँ, राइट है, यानी इतों बहुत सारी कोल्ड विंड आ जी भिड़दी है, इतों बहुत सारी क्योंकि ट्रॉपिक रीजन है नीचे, इतने बहुत सारा हॉट विंड है जी आके भिड़दी, तो दोनों हवावां जो भिड़दे तो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट, ठीक है। सो एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज कॉल्ड बी आंसर। समझ लगी भाई। सो ये कुछ क्वेश्चन है जोड़े कि मैं अगे भी करवाता रहूँगा, क्योंकि मैं लैक्चर इदों पहला भी पाए आ, इस करके थोड़ा जिहा मैं थक्या, राइट। जिवें इस तो बाद वाले क्वेश्चन भी आप कर लांगे की है, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस इज इनक्रीजिंग, वाई इज दिस फिनोमेना ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो की ਇਹਦਾ बेसिकली कॉज है, ये बारे भी आप चर्चाबात कर लाँगे। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ, तुसीं दस सकते हो आंसर जेकर दसना चाहो, ठीक है। मैनूं लगता क्वेश्चन कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट तुसीं बहुत बारी पढ़िया होगा, राइट। सो जिवें क्योटो प्रोटोकॉल आप पढ़िया, कार्बन क्रेडिट्स आर अवार्डेड टू द कंट्रीज और ग्रुप्स। चलो आंसर तो खैर मैं दस सकदा सीधा, ठीक है। सो बट अपना नॉट पूछा ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ नॉट पूछा, सो ਇਹਦਾ डी आंसर कार्बन, हाँ ठीक है। चलो खैर ये मतलब आपको ऐ करने का कोई फायदा नहीं ना जिन्ना चक्कर आप समझते नहीं। सो आप नैक्सट सैशन के करांगे, ठीक है। होर भी क्वेश्चन है, मैं होर भी ये ऐड कर लूँगा, बाकी तुम आंसर इन्हों के दस सकते हो जेकर दसना चाहो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। तो बाकी जे आह क्वेश्चन भी इशू लग्या थोड़ा थोड़ा जिहा, क्योंकि जो मैंने लग रहा, ठीक है, तो जो कार्बन क्रेडिट वाला भी मैं क्यों आंसर दसता, ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा अगले लैक्चर के करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। बाबा मेहर करे, चढ़दी कला चो इस तरीके पढ़ते हो, आप होर नवीं वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।